Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 4 in Civics Understanding Law. इस चैप्टर में हम लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉ। एक सेट ऑफ रूल सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी कोई भी देश या समुदाय अपने देश में इम्प्लीमेंट करता है, इम्पोज करता है उन एक्शंस, किसी भी एक्शंस के लिए अपने देश के लोगों पर इम्प्लीमेंट करता है। और इफ somebody breaks this rules तो some penalties should be imposed also, ना कि अगर किसी ने रूल को ब्रेक किया है तो उसके लिए कुछ पेनाल्टीज भी डिसाइड की जाती हैं। यानी कि ये उम्मीद की जाती है देश के नागरिकों से, कोई भी देश चाहता है अपने नागरिकों से और समुदाय के लिए कि these laws are fit for each and everyone, we should follow this। जब कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो कुछ पेनाल्टीज को इम्पोज किया जाता है। Let's move that what are laws, through expansion of the laws. You may familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, the laws dealing with buying and selling of property. In charge of making laws is what? Parliament. So students, we all are familiar, हम सभी लोग familiar हैं कि there is a pre-decided age of marriage, that is 21 for the men and 18 for women, according to the prohibition, under the prohibition of Child Marriage Act, that is known as PCMA 2006, that age of marriage is 21 for men and 18 for women. And the age of casting votes is also decided earlier. When a person can attain 18 years, then he or she will be able to cast their votes. And same, the laws of dealing and buying, selling of property is also pre-decided. When we can do buy or sell the property, when we can own our house at the age of 30, 35. So now we know this very we have read in the previous chapter that in charge of making laws is कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है? हम वी आर मेकिंग लॉज, पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाते हैं। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में रीड करते हैं तो some question arises in our mind that do these law apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial also? If is it right, then at that condition, what should be we as citizens do under such circumstances? So in this chapter, we'll learn about these things कि जो laws हैं वो सभी पर अप्लाई होते हैं, इक्वली होते हैं या नहीं, और न्यू लॉज भी आते हैं फैक्ट में, और क्या लॉज भी अनपॉपुलर हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लोग उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं। अगर इफ इज इट ऐसा है अगर, तो उस एज अ सिटीजन उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। So in this chapter we'll learn about this only. So let's start. Do laws apply to all? Yes, the laws apply to all and everyone equally. In our independent country, the rule apply to all and everyone in the same manner. We are dealing with the rule of law, यानी कि कानून का नियम। And so what does the rule of law means? That all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Here we can see all the person is in independent India are equal before the law. It means that law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender.
law applies equally to all citizens of country and no one, not even the president of country, is above the law. So now I'm going to explain it in Hindi कि जितने भी भारत में जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लोग हैं सभी पर्सन्स कानून के सामने एक जैसे ही हैं, इक्वल हैं. कोई भी लॉ टू पर्सन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, वो चाहे कोई भी बेसिस हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पर, चाहे वो कास्ट के बेस पर या फिर जेंडर के बेस पर. किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी धर्म का है कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो सेम सभी के लिए लॉ बिल्कुल सेम होगा. किसी भी कास्ट का, वो हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, रिजर्व कैटेगरी का हो या अनरिजर्व कैटेगरी का, सेम लॉ होगा सभी के लिए. ऐसा नहीं है कि मेल के लिए दूसरा लॉ है, फीमेल्स के लिए दूसरा लॉ है. ऑल आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर. So here we can see, students, that law apply equally to all citizen. Not even the president of country is above the law. जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो भी लॉ से ऊपर नहीं है, उनके लिए भी लॉज हैं. Let's move towards next slide. We'll learn further about the laws. Any crime or violation of law has a specific punishment. But in ancient India, law did not apply equally to all. Even punishments that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more ruthlessly penalized. Even the colonial government failed to establish the rule of law in India. The colonial law was arbitrary. So let's see in Hindi, students, कि कोई भी क्राइम हो जो लॉ को वायलेट कर रहा है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है, लॉ को अवॉइड कर रहा है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है. पहले से प्री डिसाइडेड एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है कि अगर वो लॉ को ब्रेक किया है तो एक इस तरह की पनिशमेंट्स होगी. When we are talking about the post-independent India, it happens that the law was not equal for each and every one. Some people get more punishment, some got less punishment. And the people who belongs to the lower caste, they got more punishments, ruthlessly penalized. यानी कि हमारे जो आज़ाद भारत के पहले की जो सिचुएशन थी, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उस समय पर लोगों ने अपने खुद के लॉ बना लिए थे. ठीक है. और जो टू पर्सन्स की जो पनिशमेंट थी वो भी वेरी करती थी, डिफरेंट होती थी. वो डिपेंड करती थी सेम क्राइम के लिए, वो उनके कास्ट बैकग्राउंड्स पर डिपेंड करती थी. अगर इफ द पर्सन बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, ही और शी विल गेट less punishment, and if the person belongs to lower caste will get more punishments and more ruthlessly penalized. Here the meaning of ruthlessly means brutal, we can say cruel, nirmamta purvak. Even the colonial government failed to establish the rule of law. Rule of law means what? कि कानून का नियम, इसको colonial government भी establish नहीं कर पाई. The colonial law was arbitrary. क्या था कि जो कॉलोनियल रूल भी था वो भी आर्बिट्रेरी था, यानी मनमाना ढंग से था. कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट किया हुआ था, उसके पीछे कोई कोई भी नियम नहीं था कि ये बिल्कुल, वो जो भी रूल अप्लाई करते थे वो उनके फेवर में होते थे, ब्रिटिशर्स के फेवर में होते थे, एंड कुछ भी इंडियंस के अगेंस्ट में करते थे. आई विल गिव यू 2 examples, students. Here the meaning is colonial government. Student, colonial government refers to the British government. Okay. Colonial means होता है औपनिवेशिक, and colony, our country India was colony of Britishers, means the country under British rule. जो भी country कभी भी British government के अंडर रही हैं उनको हम कॉलोनी बोलते हैं. एक यानी कि ब्रिटिशर्स का एक उपनिवेश, राइट. तो इन्होंने भी स्टैब्लिश नहीं किया रूल ऑफ लॉ. So I'm giving you one of the example, students, that this example is related to the Rowlatt Act,
In this act, what happened? This act allowed the British government to imprison people without due trial. Indian nationalists, including Mahatma Gandhi, were in their opposition to the Rowlatt Bill, and as the act came into effect 10 March 1919, most of the people were against this rule. In Punjab, protests against this act continue quite actively on April 10, two leaders of the movement, Satyapal and Dr. Saifuddin Kishlu, were arrested. And on 13th of April, Jallianwala Bagh massacre held in Amritsar, Punjab, in which General Dyer entered the park with his troops. They closed the only exit, and without giving any warning, General Dyer ordered the troop to fire. Several hundreds of people died in this gunfire, and many more were wounded, including women and children. This so this shows the arbitrary rule of ब्रिटिश स्टूडेंट्स. ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके खिलाफ जब लोगों ने अपना एंगर शो किया, उसके अगेंस्ट में किया, अपनी वॉइस रेज की, तो उन्होंने क्या किया, फायरिंग कर दी. और उससे पहले 10 अप्रैल को 2 हमारे लीडर्स थे जो कि सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किशलू थे, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया बिना किसी मुकदमे को चलाए, सिर्फ शक के बुनियाद पर कि वो हमारे अगेंस्ट में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है. और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, उसमें एक सभा चल रही थी और जनरल डायर ने वहां एंटर होकर के ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया. और उसमें अंधाधुंध गोलियों में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे औरतें, बहुत सारे लोग जख्मी हुए. तो दिस शोज द आर्बिट्री रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. एंड द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ये वो एक्ट था, सेडिशन एक्ट था 1870 में, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ब्रिटिश लॉ. इसमें क्या था कि अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. यानी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है सिर्फ शक की बुनियाद पर, विदाउट किसी भी ड्यू ट्रायल, यानी किसी मुकदमा के बिना उसको जेल में डाल सकती है अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, किसी भी तरीके की आलोचना कर रहा है या उसके विरोध में है. तो दिस इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ब्रिटिश रूल. So let's see further. Indian nationalists raised voice against the arbitrary use of authority by the British. They began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपनी वॉइस रेज की और और समानता के लिए संघर्ष किया. हियर वी कैन सी कि ग्रेटर फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष किया. एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ, यानी कि वो जो नियम था, कानून का मतलब ऐसे नियम जो थे जिनको जबरदस्ती पालन करना पड़ रहा था, उनको चेंज करने के लिए अपनी आवाज़ें उठाई. और वे कानून को ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे कि जो न्याय पे आधारित हो, यानी कि इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस, नॉट फोर्सफुली एक्सेप्टेबल हो. इसके लिए लोगों ने संघर्ष किया. और हमारे जो प्रोफेशनल्स थे, लोग जो कि लॉ से रिलेटेड थे, उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए संघर्ष किया. स्टूडेंट, सेडिशन का मीन्स क्या है? राजद्रोह होता है. अब हम अपनी कंट्री में गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, अब राजा के बेसिस पर नहीं है. पहले राजा महाराजा जब रूल किया करते थे, तो जब भी कोई व्यक्ति राजा के अगेंस्ट में जाता था तो सेडिशन मीन्स होता था राजद्रोह एक्ट. सेडिशन एक्ट मीन्स राजद्रोह. बट नाउ our country ruled by our representatives, means the government. If the somebody is against the government, at that time it implements, right? और ये ब्रिटिश टाइम पीरियड पे राजद्रोह एक्ट था 1870 का. So let's see what happened after that. By the end of 19th century, the Indian legal professions also began emerging and demanded
respect in colonial courts. Indian judges began to play a greater role in making decisions. With the adoption of the constitution, laws for the country began to be made by representatives. So, after that, what happened in the 19th century? Students, Indian legal professions also began emerging demands, respect in colonial courts, जो कि औपनिवेशिक अदालतें थी, जो कानून के जो पेशेवर लोग थे, उन्होंने भारतीयों की मांग को औपनिवेशिक अदालतों में रखना स्टार्ट किया और कहा कि उन्हें भी सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। ऐसे कई सारे भारतीय कानून विशेषज्ञ थे जो अपने देश के लोगों के अधिकारों के लिए, अधिकारों की सेफ्टी के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसमें इंडियन जजेस ने भी एक वाइटल रोल प्ले किया, ग्रेट रोल प्ले किया है। भारतीय जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी फैसले लेने से पहले ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे और क्या किया, इस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन था यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था, उसी के दौरान कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के बारे में लोगों ने सोचा और उसको डेवलप किया, उसके विकास को बढ़ावा दिया और यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे। अब हमको पता